one thing that I believe in is putting a value system into society. तो क्या होगा कि अभी आर्या has become bad, उसको सजा मिलेगी. Like in this season in 3.2, Arya does bad things. Her children are against her. I mean, even Arya is toxic, by the way. नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप. मेरा नाम है अविनाश पाल. आर्या अंतिम वार के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राम माधवानी और सिकंदर खेर. स्वागत है आप दोनों का. धन्यवाद. थैंक यू. राम, आपसे शुरू करूंगा. पहली चीज जो जानना चाहूंगा वो ये कि बतौर क्रिएटर या डायरेक्टर जब उस कुर्सी पे होते हो जहाँ पे आप सारी चीजें कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, मूड कैसा होता है? कितने सख्त होते हो, कितने चिल्ड होते हो? जैसे नोलन है, क्रिस्टोफर नोलन, ही इज लाइक वो 3-piece सूट में शूट करते हैं पूरा, है ना, वो उनका फॉर्मेट है. आपका क्या प्रोसेस है जब आप उस कुर्सी पे होते हो? First, with my actors, I'm very loving. So I have one face with my actors, which is all hugs and everything. And then I have a second face with my team. कभी ऐसे शिफ्ट हुआ है With the actor? हाँ, Never. कि कभी इधर सख्त हो गया और उधर बहुत प्यार हो गया. खत्म हो गया ना, काम खत्म हो गया है. काम खत्म हो जाएगा. Yeah. If I ever do that, these are the people that I love and respect, and without them, I'm nobody. So, but my team has to, because I also work very fast, so I do a lot of prep, and I also believe that in life there is no take two. So my team has to be ready for take one. So my DOPs, my focus pullers, my production team, everybody has to be ready for take one. Because अगर वो take one में जो जादू इन लोग ने दिया है, if there is a technical reason or a production reason why it doesn't happen, that is a crime. अब मैं crime thriller बना रहा हूँ, लेकिन जो crime जो actually जो है, जब actor ने कुछ दिया और हमने capture नहीं किया, वो crime है. That should be punished. So I have to tell my whole team, you don't understand when they are there and they're giving us this, you have to be on your toes, making sure that you have got that sacredness of that moment. Because वो जो है ना, वो butterfly जैसे होता है, वो एक बार उड़ गया ना, तो वो butterfly अभी आपको वापस नहीं मिलेगा. तो how can, I mean, to me, I get angry and sad that if you're not going to be ready to capture what they have given, which is so ephemeral, it is ऐसा वो जाता है, you know. आर्या के सेट पे ऐसा कभी कुछ हुआ कि कोई शॉट जो आपको लगा यार ये बहुत प्यारा था, लेकिन किसी ना किसी टेक्निकल ग्लिच या किसी भी वजह से वो छूट गया हो, फिर दोबारा करवाना पड़ा हो? Very, very rare. I mean, it doesn't happen. Even my focus pullers, I clap for them. The whole team claps for them. ऐसा कभी हुआ नहीं कि भाई फोकस आउट था तो इसलिए हमने शॉट वापस लिया. और मेरे टेक्स जो है 20-30 मिनट के समटाइम्स होते हैं, one shot होते हैं with 4-5 cameras. So I believe that the people who are on the set, all 300 people should know I'm shooting without me saying silence. They should know I'm rolling without me saying action. They should know that the sound, I don't say any of this. It'll go, I'll just do this. So the set is a very silent set. मतलब क्रू फिक्स रहता है आपको ऑलमोस्ट? नहीं, हर दफे वो नया ट्रेनिंग में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. Because sometimes they're not free. I wish I could work with the same people over and over again. Maybe they don't want to work with me. No, that's not true. A lot of the people do want to work with me again. Everybody wants to work with him again and again. He doesn't really want to work with everybody again and again. Sometimes I don't want to work with myself. I think he looks for freshness also, no, somewhere. I think it's just with a team, no, with a crew. With a crew is different. It's very different, yeah. I'm talking about actors only. No, actors, it depends on what the role is. I would like to work with Sikandar for every role. Quite Sir, अभी ये तो बोल दिया तो record हुआ है ना ये. ये record हुआ है. चलो अच्छी बात. And even in the last, I told him this new series that I'm doing, I would have liked to have worked with him. I couldn't work with him because that was a different role and all the rest of that. So, but I would love to, because once you know an actor and you have that comfort, that ensemble is the best way. Because then you have that comfort, then you don't have to. Again, क्या होता है? Like to build that. कि भाई मैं हूँ ऐसा, you are like that, how do we get each other? That is very important. काम तो होगा. Okay, talent तो I take for granted. Talent तो है ही है, इसलिए तो आप यहाँ हो. So, but this is very important, and that chemistry of people working together, एक जो स्वहृदय जो बोलते हैं, स्वहृदय,
which is like-heartedness. Okay. It's what? Not like-mindedness, Like-heartedness. Yeah. Sahriday. No, that's a beautiful thing. Actually, Yeah. I heard it. In fact, I heard it for the first time. But it is the reason that I work with people because they're like-hearted. I think, and that is the most important. That's the most important thing. Yeah. And otherwise, sometimes when you work with new people, no, वो पता नहीं चलता है. एक हफ्ता, 2 हफ्ता के बाद पता चलता है कि अरे यार, this man is not same conversation, not same vibe, same energy. Yeah, same energy. क्या है? There is a quote that I use, which is sometimes where you fit in is not where you belong. आप fit in तो कर सकते हो. Fit in तो हमारा काम है भाई fit in करने के, लेकिन belonging जो है ना, that is most important. So I spend a lot of my time making sure that the people that I'm working with have a sense of belonging. ठीक है सिकंदर, जब आप कोई प्रोजेक्ट शूट करते हैं, एक्ट करते हैं, एम्बिशियस अगर होता है या लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो बहुत अलग है, आया है मेरे पास, तो उसके लिए जहन में और दिमाग में वो टेंशन या प्रेशर क्रिएट होता है कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट, या और चिल्ड हो जाते हो कि ठीक है ना, कर लेंगे? नहीं, दोनों तो बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं जो आप कह रहे हो. दोनों बहुत एक्सट्रीम है. बट नर्वसनेस किसी भी चीज के लिए होती है. मतलब एक्टर हैं, पहला दिन शूट पे तो नर्वस होंगे ही, कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, बट रोज कोई ना कोई नया चीज होता है. मेरे लिए जब मैं अपने सीन पढ़ता हूँ, मेरे जहन में नेचुरली चलते रहता है, वो चलते ही रहता है नॉर्मली. मतलब इट्स नॉट लाइक मुझे अभी बैठ के स्टडी करना है उस, क्योंकि मैं नेचुरली देख रहा हूँ कि उसे मैं नेचुरल कैसे बनाऊँ या क्या कर सकता हूँ इसके साथ. वो नॉर्मली चलते ही रहे. मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं, तो वो चलते रहता है. तो उसमें प्रेशर लेने की बात ही नहीं है. बट ये भी नहीं है कि आप चिल हो कंप्लीट. I think if you're chilled then you'll just give, I think, just basic only. I don't think you'll be able to find anything. तो मैं actually honestly मैं अलग अलग चीजें ट्राई कर लूंगा. दौलत के लिए क्या ट्राई किया था? दौलत के लिए तो वैसे भी बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया था वो कैरेक्टर कि बहुत ही साइलेंट है, पर जैसे कि उसके रिलेशनशिप आर्या के साथ है वो उन्होंने मुझे समझाया फर्स्ट डे शूटिंग पे. इनफैक्ट उसके पहले ज्यादा थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी. तो दौलत के लिए था कि उसे थोड़ा कंटेन रखना है. जैसे ये कहते हैं कि समुराई, उन्होंने समुराई बुलाया इसे. सो आई थिंक दैट इज इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल, नो, डायरेक्शन, योर डायरेक्टर्स, द मेकर्स, एंड व्हाट यू गोइंग टू ब्रिंग ओवर देयर. कोई प्रोसेस नहीं है मेरा. मैं आ जाता है जब पढ़ता हूँ. अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो ही मैं करना चाहूंगा. अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कैरेक्टर के बारे में, मैं करना चाहूंगा. तो ऑलरेडी 90% ऑफ दैट इज डन. When he's read the script, he's already understood his ability to play it. Because if you don't get it, then you're not going to be, then you won't do it. So he's already got it. That's why he said yes. Yeah. ट्रेडिशनल सिनेमा या जो पहले तक जो फिल्में बन रही थी, उनमें बहुत क्लियर होता था कि अच्छा है, ये बुरा है, गुड और बैड. बट अब जो शिफ्ट आ रहा है सिनेमा में, उसमें गुड और बैड जैसे एग्जैक्टली है नहीं. इट्स समटाइम्स और समवट लाइक ज्यादा इविल, कम इविल, ग्रे कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस हो रहा है. तो लगता है कि ऑडियंस भी या दर्शक भी कहीं ना कहीं इसको लेके अभिशप्त हो रहे हैं. So एक तो one thing that I believe in is putting a value system into society. तो क्या होगा कि अभी आर्या has become bad, उसको सजा मिलेगी. वो हिंदी फिल्म में जो लास्ट शॉट जो होता था ना सेंट्रल जेल का, and the hero used to come out of central jail. That means the hero has to repent, the hero has to get punished. शायद वो एक शॉट के लिए सेंट्रल जेल में से बाहर आएगा, लेकिन सबको पता चलना चाहिए कि भाई उसको सजा मिला. सजा हुई. That value system, no matter whether the character is doing bad or good, at least in what we are making with Amita, my co-producer, and we were very, very clear कि भाई that value system has to be put out into society, which says if you did a bad thing, you will get punished. You can do a bad thing, not a problem, but at some point you will repent. Like in this season, in 3.2, Arya does bad things. Her children are against her. She has become toxic. She has lost her innocence. She no longer smiles. And it is a story of sacrifice. So there is many things over here where you turn around and you know that she will repent. कर्मा में एक्चुअली में बिलीव करते हो? जी, I do.
Karma is I do not in the next life, in the earlier life, इसी में in this life. हम्म, I do believe in it. I believe in the fact that your actions make who you are. सिकंदर, दौलत का जो किरदार है वो भी ग्रे है, मैं ये नहीं कहूँगा प्योर वाइट है, प्योर ब्लैक है। उस पे आपके जो फ्रेंड्स थे या रिलेटिव्स थे या फैमिली थे, उनके रिएक्शन क्या थे? जैसे अभिषेक बच्चन, आप बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो, कि जब दौलत का किरदार प्ले किया उस कैरेक्टर पर, उनके रिएक्शंस कैसे थे? मैं अपनी माँ के बारे में बता दूं, सिंपल होगा। हाँ, क्योंकि वो उनका जो रिव्यू, मतलब आप रिव्यू बोलते हैं उसे, बट जो हमारी बातचीत होती है Feedback, कुछ हाँ। देखने के बाद, मैं ऑनेस्टली अपनी माँ के पास जाता हूँ ज़्यादा, मोर देन माय डैड ऑल्सो, क्योंकि मेरे डैड इनकरेजिंग है, क्योंकि कहाँ से आए हैं, उनका वाइब भी वो है इनकरेजिंग। बट मेरी माँ सच बोलती है हमेशा। तो उन्हें शो तो बहुत ही पसंद आया और उन्हें दौलत भी बहुत पसंद आया। आई डोंट थिंक कि ग्रेनेस वगैरह, वो एक्टर के तौर पे देख रहे हैं, मैं एक्टिंग फैमिली से हूँ, Correct. दोनों एक्टर्स हैं, तो जो भी कर लूँ मैं स्क्रीन पे एक्टिंग ही होता है। तो उस हिसाब से वो देखती हैं और वो मुझे कहती हैं, अगर उन्हें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी वो मुझे कह देंगी, अगर उन्हें कुछ चीज़ अच्छी लगी वो मुझे कह देंगी। तो फिर जब दूसरे लोग कहते हैं कि हमें अच्छा लगा, मेरे को यूजुअली मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जब मेरी माँ कहती है कि मुझे अच्छा लगा, फिर मैं बोलता हूँ अच्छा फिर कुछ सही किया होगा मैंने। तो उन्हें दौलत, So sweet. they enjoyed it, she enjoyed it, she liked it, she liked the show. That matters to me the She most. called me also, हाँ, which was a big deal to get a call which said, so it was something which was a moment in my life that, she went out of her way to actually call to say that she enjoyed it. no, also you gave her son, who is the apple of her eye, such a beautiful role and such a beautiful show. अग्री, तो I think that is बनता है। वो वही है, वैसे ही देखते हैं और ऐसे ही वैसे ही हम लोग काम भी करते हैं। ठीक है, आपने बोला कि आप उस चीज में बिलीव करते हो कि अगर कुछ गलत किया है तो होगा, तो सजा मिलेगी। सजा मिलेगी, है ना? जी। बुरे और बहुत बुरे वाले कॉन्टेक्स्ट के पशोपेश के बीच में आती है कैनिमल जैसी फिल्म, जहां दर्शक उस ग्रे को बहुत पसंद कर रहा है, जी। ऑडियंस का जो शिफ्ट हो रहा है उस पे, उसको कैसे देखते हो? I haven't seen Animal yet, so Okay. I will refrain from speaking about the film. But obviously, I have heard all the conversation. So I'm not talking about the film, but it's only after I see the film that I can comment on what is happening and what the value systems of that were. And you see, there are also some, like obviously from the trailer, I realized that he loves his father. So there are certain things over here that you put into, like society may also be liking the father-son, sort of thing. Like in Arya, it is eventually got to do with mothers and children. So there are basic core emotions that are also at play over here. And I think that is the other conversation that we need to have in society, which is not just that, even Arya is toxic, by the way. भाई ग्रे शेड से ही बात होती है ना, Exactly, ये yeah. करेक्ट। So, in Hollywood, or about 10 or 15 years ago, what they used to call as a golden era of television, of OTT, when, all the, let's say 6 Feet Under and, all of those which came up at that time, it came up because there was a value system shift. And that value system shift became Breaking Bad, etc. It became we are no longer interested in good people, and we're no longer interested in good value systems. So they began to actually explore that first. But now if you look back at what is happening, we've got Ted Lasso. Okay, and Ted Lasso is no longer... So I think society is shifting back from the character who was, even in Breaking Bad, the reason that he was what he became is because he had cancer or whatever that he had. Yeah. So I think that what has happened is that even though there is this gray character, there is always something below it which is allowing you to forgive the gray character. दौलत का जो किरदार है वो इतना खूबसूरती से लिखा और दिखाया या प्रेजेंट किया गया है कि वो कहीं ना कहीं दिमाग में नशे जैसा चढ़ता है। वो धीरे धीरे वो लगता है, जब भी स्क्रीन पे दौलत आता है वो लगता है कि अब कुछ बहुत मजेदार होने वाला है। वो एक मूवमेंट है, वो रहा है पूरी सीरीज में, एटलीस्ट मैंने वो फील किया है। उसके बाद अभी द मॉन्की मैन, उसका ट्रेलर देखा मॉन्की मैन का, वो जो ग्लिम्स आई ना, वो लगा कि कुछ तो आ रहा है, बहुत कड़क आ रहा है। आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद आप पे भी इसका रिएक्शन चाहूंगा कि ट्रू, बिकॉज़ मैंने भी वो ट्रेलर देखा।
मेरे ख्याल से 3 शॉट में वो आता है. I don't know how many shots. नहीं उतना ही है सर. Yeah, 3 shots. हाँ. In all 3 shots, I also had a feeling in my stomach. I said, अरे यार. मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं. अच्छी बात है. तो जो सवाल है वो ये है कि आपको लगता है कि सिकंदर खेर जो डिजर्व करते हैं, जैसा परफॉर्म करते हैं, इंडस्ट्री से उन्हें वो तवज्जो, वो वैल्यू, वो काम नहीं मिल पा रहा है, यूज नहीं कर पा रही है आपको इंडस्ट्री? ये सवाल आपने दोनों से, क्योंकि आपने इनको लिया है. नहीं, तो वो I have used his talent. I'm very happy. I don't know. देखो मैं बहुत सिंपली जेन्युइनली देखता हूँ ऐसे कि सबका पाथ अपना होता है. किसी कोई इंसान जिम कैरी जैसे एक फिल्म कर लेगा, अगले दिन सुपरस्टार. देयर आर पीपल लाइक दैट. सबका पाथ अलग है. कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को टाइम नहीं लगता. देयर इज नो लाइक जब आप कहते हैं इंडस्ट्री ने इनको तवज्जो नहीं दिया वगैरह वगैरह, वो ऐसे होता नहीं है. आपको क्या पता जो आप फिल्में कर रहे हैं या शो कर रहे हैं ये चलेगा नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता. हम अपने कन्विक्शन और अपने प्यार पे जाते हैं. बेसिकली क्या होता है, जो राइड है, आप जिन लोगों से मिलते हैं वो करते हैं. उससे ज्यादा सोचेंगे तो आप हमेशा उदास या तो रह सकते हैं या बेटर रहेंगे दुनिया के साथ, है ना. वो तो और ये इंडस्ट्री क्या है? What is this industry? तो industry is us. Industry is us and some other people also, but by and large we are part of this industry. So other people will be saying that we are industry. कौन industry? हम कब industry कब बन गए? We are not in an industry. I get a little hassled because what happens is that we are not a conveyor belt. We are not a manufacturing unit. We are not a factory. How is it that we became an industry? When did we become an industry? Why can't we say that in this, like it feels, this is the big problem because you can't say in this art form circle because you say, तो क्या आर्ट बोल रहा है इसको? अरे भाई इंडस्ट्री, you're proud about calling it industry but you cannot call it art. I don't understand this. This varies from view to view कि कुछ लोगों के लिए कमर्शियल वाली चीजें हैं, कुछ लोगों के लिए आर्ट वाला. I think that we are only in the art business. We are in a business for sure. For sure. But we're not in an industry. Adding the art value. Okay. Monkey Man का क्योंकि जिक्र हुआ, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा. हमने बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में उस फिल्म को शूट किया. हमने पीक लॉकडाउन में शूट की थी ये फिल्म. आ रही है, कुछ समय लग गया और लोगों का प्यार इस ट्रेलर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है. बस अभी आई होप जब आए लोगों को फिल्म अच्छी लगे. इसके आर्या के कितने सीजन तक ले जाने का प्लान है? पेनोजा है ना, जिसके 5 रहे, 12, 13, 14, 15. हाँ, मेरा वही सवाल है कि कहाँ तक ले जाने की उसमें है कि अच्छी राइटिंग के साथ इसको कितना ले जा सकते हैं. आर्या का डॉटर का नाम है आरू. So by 16 it will become Aru. नहीं sir, it will become Daulat. Not 16 by 4. Yeah. There is an entire multiverse. Sir, क्या बात कर रहे हो? Multiverse. Yeah. अच्छा, बहुत सारे, क्योंकि ये अडेप्टेड है, बहुत सारे हमने देखे हैं जो सीरीज आई हैं या मूवीज आई हैं जो रूपांतरण है ना. बट आर्या इन अ वे इट्स अ भावांतरण. उसमें वो इमोशन रहा है. You understood both those words because I didn't. Please ask him to explain. क्या मतलब बता दो प्लीज मुझे. रूपांतरण एज इन आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया है ना, थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डाल के, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है दिल से. बट आर्या का भावांतरण है, जो उसके इमोशंस हैं, भाव से रहे हैं. तो वो एक चीज मेरे को आर्या में बहुत अच्छी लगी. इसको लेके कभी किसी ने स्पेसिफिकली कुछ बात बोली है? इसके पीछे की मेहनत कैसी रही? तो जब 10-12 साल पहले when I looked at Penosa, हमारी काफी दूर है वहां से, but when I was asked to look at it, I said, भाई मुझे ये पता नहीं है कैसे मैं culturally adapt करूँगा, because without that cultural adaptation it doesn't work. And एक दिन मैं आमिर खान के साथ में सत्यमेव जयते में उनका गाना कर रहा था, म्यूजिक वीडियो. I was on the train and I asked the TC कि भाई यहाँ ये जो येलो फ्लावर्स जो है वो क्या है? And they said, that's opium flowers. And at that time, it would take 2 साल से मैं सोच रहा था इसको कैसे अडेप्ट करूँ. मैं हर दफे में ना बोलता था, नहीं करना है. I don't know how to do it because it's not a crime drama. I'm not interested in crime. I'm not interested in thriller. So I said, once I got that, then I said, oh shit, this is a Marwadi family. My nieces are Marwadi.
Then I said pharmaceutical company. ये business family है और ये business family के अंदर family relationships का show है. Once I realized that this is a joint family problem, and I also come from a joint family, then I understood why I want to make it. And then the crime is there to keep everybody. How interesting. Yeah. How interesting. I didn't know like this. No. Okay. I don't know like this. Yeah. So that's the reason I then became convinced that I can make it, because it became part of a milieu that I, like for instance, when I used to go to some of the family in, in Jaipur, for tea they would have 30 things. चाय के लिए कुछ 30, and now I'm told के आजकल वो दिल्ली में हाई टी नहीं बोलते हैं, heavy tea बोलते हैं. Heavy tea, okay. So that is a heavy tea. And heavy tea. Yeah, exactly, So all of this became part of my life. I knew these people. It was crime तो ठीक है, वो तो दूर की बात है. Obviously, I don't know crime. But that is not this show. This show is a family show. It's about a mother, it's about children, it's about a father. And so I wanted to reach out for that kind of thing. The reason it's also worked is because the cultural adaptation has nothing to do with plot. It has got to do with because वो plot तो ठीक है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और drugs को तो किसी को interest नहीं है. Like अभी तक भी, if you ask us, कि season 1 में वो 150 crore था या 300, season 3 में कितना करोड़ का है, हमको writers room में नहीं पता है. हर दफे हम एडिटर को पूछते हैं, अरे यार वो जरा वो सही नंबर डालना, 300 करोड़ का है वो, जरा कितना था, 300 है ना. मुझे भी नहीं पता अभी तक, because I'm not interested, because that's all fine, that's all part of the gift wrapping, okay, but the gift is what is interesting. Wrapping तो वो तो प्लॉट के लिए हमने किया है. जो गिफ्ट जो है वो इमोशन, रिलेशनशिप्स, फैमिली, वैल्यू सिस्टम्स, दैट इज व्हाट द गिफ्ट इज. सीरीज में चंद्रचूड़ सिंह का जो कैरेक्टर है वो बहुत कम है, क्योंकि वो पहले सीजन में ही कहीं ना कहीं ठीक है हो गया, खत्म हो गया, बट थ्रोबैक से, फ्लैशबैक से वो कहीं ना कहीं वापस आता है और बतौर दर्शक मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ठहराव लाता है. वो देख के वो पल आप मुस्कुराते हो स्क्रीन पे. and also that song, no, बड़े अच्छे लगते हैं. Yeah. तो उसको कोई ऐसी फरमाइश आई है, सोचा कि इस बार या आगे जो बनेंगे थोड़ा सा और बढ़ाएं, वो फ्लैशबैक थोड़ा बढ़ाएं? अभी क्या करेंगे हम, दौलत और तेज का एक अलग सा स्पिन ऑफ सीरीज करेंगे. लवली. where Tej will come back as a ghost. Yeah, and haunt Daulat. And Daulat. And Daulat will seriously be haunted. Yeah, exactly. Now his eyes will show it. Yeah, his eyes will show it and he starts speaking a lot. Oh! नया कॉन्सेप्ट बन गया, नया आइडिया तैयार हो गया. बहुत शानदार. सुष्मिता से इनकी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आर्या बनी है. आर्या क्या ही पूरा मुद्दा है, बात है. जब ट्रेडिशनल फिल्में बॉलीवुड जो रहता है उससे और ओटीटी में एक बहुत बड़ा फर्क ही देखने को मिला कि वहां पे थोड़ा कमर्शियलाइजेशन वाला एक्टिंग चलता है, बट यहाँ पे नेचुरलिटी चाहिए, वो डेप्थ चाहिए. पिछले कुछ वक्त में बहुत सारे ओटीटी से ऐसे लोग उठे हैं जो लोगों के दिल में बस गए हैं. सुष्मिता सेन का वो प्रोसेस चेंज करने में आपको कितनी मेहनत लगी या कोई मेहनत नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी. She signed on like an enthusiastic बच्चा. She came on saying, मैं workshop करूंगी, this is what I want to do. She was excited. She was basically just submitted to the process, which is my process is a 360-degree process. There's no rehearsals. There's 3, 4, 5 cameras. So it depends. So she just, a lot of actors can resist it, but the actors that I was working with, they didn't resist it. They were surprised by it. They were a little worried about it, but they didn't resist it. And then when they saw the comfort of it, and I think that what has happened is that she embraced it because she also realized that I'm not here trying to, I don't tell my actors how to act. Okay, because that is not my job. I don't tell my music director how to do music. I don't tell my DOP how to light. That is not my job. My job is to inspire you to give your best. So once I get that going and I create a mahal and an energy that inspires you and sometimes scares you, then that's what my job is. एक सवाल और है जहन में, थोड़ा सा अलग है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड. जब मैं अभी आपसे बात कर रहा था वहां पे जो एक क्रिएटिविटी देखने को मिलती थी, आपको लगता है जब आप सिनेमा, ओटीटी, सीरीज, फिल्म बना रहे हैं तो वो क्रिएटिविटी यहाँ पे ऑप्शन बढ़ जाता है या कम हो जाता है? टाइम के पैमाने में, एक्टर्स के पैमाने में, पैसे के पैमाने में?
कहानी के पैमाने में हाँ, जितने भी फैक्टर्स हैं most important, yeah. But I think that मेरा जो रियाज जो होता है वो एडवर्टाइजिंग से रियाज है, एंड आई ओ इट अ लॉट, एंड देयर आर 4 things I learned in advertising. One is who are you speaking to, which is my target audience. So a lot of the time I'm keeping my audience in mind. मैं अपने लिए बनाता हूँ लेकिन मैं आपके लिए बना रहा हूँ. Okay. Second is what am I saying? Most important कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. अगर if I don't know what I'm saying, I'm not going to make it. Third is most important. How will you feel? So I'm always worrying about your expression. कि जब आप देखोगे तो आपको क्या फीलिंग आना चाहिए, चेहरे पे क्या आना चाहिए एक्सप्रेशन. तो आई नो कि एडवर्टाइजिंग में क्या होता है. आई स्पेंड 1 more minute on this, which is that आप एड फिल्म दिखाते हो कॉन्फ्रेंस रूम में, और फिर वो जो क्लाइंट जो है वो 30-40 लोग को बुलाता है कॉन्फ्रेंस रूम में, अकाउंटेंट, सेक्रेटरी जो भी है सबको बुलाता है, जो भी मौजूद रहते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. कैसे लगा आपको? माई जॉब इज टू प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन ऑन दैट पर्सन्स फेस. At the end, if I have not been able to predict that expression, then I haven't done my job. So that is all this I learned from advertising. So to me, I don't find on the fundamentals, I don't find it different. On the length and the stories and the characters and I find that very different. But otherwise, on the fundamentals, these are the questions you should ask. कभी ऐसा हुआ कुछ पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया हो एडवर्टीजमेंट में ही, और वो पूरा बनने के बाद देख के लगा कि यार मेरे को ही वो मजा नहीं आ रहा है, फिर से मेहनत करते हैं? हाँ, all the time. All the time. Sometimes I change the music, sometimes I re-edit it. Because जो responsibility जो है ना, वो my first responsibility is to whoever that I'm working with, I should be able to look them in the eye. I did you justice. Okay, so if I don't do that justice, then मेरे आँख ऐसे नीचे जाएगी. तो मेरे आँख नीचे जाएगी तो I can't see myself. I first have to look at you and be knowing fully well that I did justice to you. Like with Daulat, for instance, I can look him in the eye, say, I'm here, don't worry. You can trust me. I'm not going to let you down as an actor in your career. I will do whatever I can to make that work. I may not do it in one scene, but overall, you'll be fine. And that's very important because that's a relationship question. You know, because otherwise क्या होता है that people वो जो नाराज जब हो जाते हैं ना कि अरे यार you didn't do justice to the मेहनत, तो that really affects your heart. Beautiful. Yeah. जब आप किसी फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, जब कोई प्रोजेक्ट आता है आप मुस्कुरा रहे ना, क्योंकि फिल्मी वर्ड ही मैं इंडस्ट्री के कुछ अंदर से मेरे को कुछ होता है, हेविटी पीने का मन हो जाता है मेरे को. क्या वर्ड यूज करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फिल्म फैमिली. फिल्म फैमिली, ठीक है. जब आप एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हो, जब कोई काम आता है, प्रोजेक्ट आता है, घर पे डिस्कशन होता है या फिर कुछ ऐसा रहता है कि नहीं घर पे ये सब बातें नहीं, वो नहीं हम नहीं होती, क्योंकि आप जैसे आपने कहा फिल्म फैमिली से हैं, काफी साल काम कर चुके हैं वो, तो ना तो मेरी माँ मेरे फादर के पास गई है और कही कि यार ये फिल्म करनी चाहिए कि नहीं, मतलब हल्की सी अगर एक्चुअली नहीं, कोई किसी से एडवाइस नहीं पूछ रहा बेसिकली. आई थिंक शायद वही, मैं स्क्रिप्ट भी नहीं जिसका मैं बोलूँ, मैं शायद पासिंग में, तो यूजुअली जब तक मैं शुरू ही नहीं करता हूँ, मैं जब शुरू कर लेता हूँ 15 दिन मेरे शूट के हो गए, फिर जाके मैं अपनी माँ को बोल दूंगा. क्योंकि पहले तो ये इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी हो सकता है. फिर यू नेवर नो ना सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वेदर बैड वेदर आ सकता है. हाँ, और क्या होता है कि फिर सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चलता है यार मैंने अपनी माँ को बोला कि ये करने वाला हूँ और शायद वो हुआ नहीं, तो मेरी माँ का जो माँ का नेचुरल दुख होगा उसके लिए ना, तो वो मुझसे देखा नहीं जाएगा. तो एक वजह वो है. दूसरी बात, अंदर ही रखो, चुप रहो, बेटर है. बट जो आपका सवाल एक्चुअली था, वो काम कर चुके हैं, तो अगर मैं उनके पास जाऊंगा और बोलूंगा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अब वो बोलेंगे कि हाँ करना चाहिए, और अगर नहीं निकला तो बिल तो उन पे फटा है ना. अगर बोलेंगे करो, नहीं करो और अच्छी हो गई, वापस बिल उन पे फटा. तो वो बहुत स्मार्ट भी है क्योंकि वो इंडस्ट्री के हैं. तो सिंपल सी बात है कि हम इन चीजों में पढ़ते नहीं है. वो मेरे फादर जो बना रहे, मेरी मॉम जो बना रही, जो मैं कर रहा हूँ.
ठीक है, आर्या के बाद और कहाँ क्या देख पाएंगे आपको प्रोजेक्ट्स आप मंकी मैन के बारे में आपने बात की, फिर एक और शो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, शायद काट दें जैसे राम भी बोले जा रहे हैं अपने बारे में, एक सिटाडेल करके है, 2 और चीजें जो एक मैं अभी शूट करके मेरा 7 बजे आज सुबह सर मेरे एक फिल्म खत्म हुई। अरे 7 बजे आज सुबह 23 तारीख को भगवान की दया से अगर सब ठीक हो जाए तो फिर दूसरी शुरू हो जाएगी, और फिर अगर सब ठीक चल रहा है तीसरी चौथी पांचवी फिर शायद वहां भी चले जाएं, क्या पता। बट अभी तो फिलहाल यही है, आई कैन नॉट नेम नेम्स एज ऑफ नाउ जब तक वो अनाउंस ना करें, बट टच वुड कहाँ है, वो टच कर लूं मैं। चल रही है थोड़ी, दुकान चल रही है थोड़ी, देखते रहेंगे। वो अभी एक बात हो रही थी ना इंटरव्यू में कि आंखों से एक्टिंग करने वाली चीजें वो बनी रहेंगी ना स्क्रीन पे आप लोगों के लिए। आई होप सो अगर आप सभी का प्यार रहे, और आई होप सो। राम, आपके प्रोजेक्ट्स? I have a project called Waking of a Nation, which is also something that it's not part of Disney Plus Hotstar, so they will cut it out. But I will speak about it more when we are ready to speak about it more. Yeah. ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। थैंक्स। Thank you.